Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health, and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. I'm Anisa Salim, a student of BS Psychology, and the topic we'll be discussing today is sadly one of the most common issues of our society these days, that is bullying and harassment. And to discuss this topic with us today, we have Ma'am Sadia Zia, who is a lecturer at the Department of Psychology ISP, as well as a PhD scholar and a psychologist. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much, Anisa, for having me here today. You're welcome, ma'am. How are you? I'm good, thank you. Ma'am, to start off this topic, I wanted to ask you कि even friends में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है, मजाक में भी अक्सर टीज किया जाता है. तो what's the difference between bullying and bickering? Bullying and bickering में सबसे एक common difference जो है, basically, teasing is, it's to my surprise and to yours as well, teasing is somehow positive. When you tease someone out of affection sometimes, but when it becomes negative and that affection just gets lost and it enters to the phase of hostility and negativity, then it becomes bullying. To degrade someone. Exactly. क्योंकि जब tease आप करें, it's out of affection. आप on the both individuals or the both parties on both sides, it's taken as fun or on a lighter note. But अगर उससे एक hurtful emotion generate हो रहा है, then it's no more a teasing comment or a teasing act, then it becomes bullying. So what are the factors which lead a person to become a bully? कि वो दूसरे का मजाक उड़ाए, तो क्यों? देखिए, this is something really important. इसमें बहुत सारे factors हैं, लेकिन मैं एक बात पहले ये कहूँगी कि bullies are not born, they are made. So the question is कि how are they made? इसकी basis वही फिर एक बात है कि childhood में सबसे ज़्यादा अगर हम developmental psychology के perspective से देखें तो developmental phases में definitely your childhood is one of the most important part of your life that determines how an adult you are going to become. तो childhood में आप early childhood में 5 to 12 years की age तक according to different researches, it determines a behavior of a bully कि वो किस तरह से grow कर रहा है, जिसमें पहली चीज़ तो ये आ जाती है the lack of good social interaction, कि उसको उस तरह का social interaction नहीं मिल रहा. फिर इसमें parenting styles आ जाते हैं जो कि somehow overly authoritative और abusive होते हैं, जो उसकी growth पे एक ऐसा impact डालते हैं जिसका आप कह सकते हैं grudge या frustration जो है वो later ages में, even childhood में, क्योंकि बहुत सारे cases जो होते हैं वो बच्चों के school में होते हैं bullying के, और children पेयर्स में ऐसा होता है या फ्रेंड ग्रुप्स में ऐसा होता है कि चिल्ड्रन बुली ईच अदर, या देयर इज़ अ ग्रुप एंड देयर इज़ अ बुली और वो सबको थोड़ा सा अथॉरिटेटिवली डील कर रहा है. तो ये तमाम चीज़ें चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये फिर कंटिन्यू करती हैं, रिपीटेडली होती हैं, क्योंकि समहाउ हम लोगों को ये नहीं पता होता कि हाउ टू डील विद इट, हाउ टू कर्ब इट, हाउ टू स्टॉप इट. तो फिर उससे क्या होता है, वो मज़ीद एक मोटिवेशन जनरेट होती है, उसको पंपिंग कह सकते हैं आप, कि वो उसका कॉन्फिडेंस जो एक बुली का वो मज़ीद बढ़ता है, और वो फिर एक छोटे लेवल से, एक स्कूल लेवल से, फिर आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर वो वर्क प्लेस तक जाता है, फिर कोलीग्स तक ही पहुंच जाती हैं ये चीज़ें. तो चाइल्डहुड में ये चीज़ें डिटर्मिन होती हैं एक्चुअली आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स की वजह से, आपके लैक ऑफ गुड सोशल इंटरेक्शन की वजह से, और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसी सोशल परसेप्शंस हैं कि हमें लगता है कि हमें सोसाइटी इज़ परसीविंग अस टू बी अ बुली, देन समहाउ इट्स अ प्रेशर ऑन us to act as a bully. It's becoming a trend. Exactly. तो हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, कि इसलिए कहते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट्स बच्चों को नहीं पास ऑन करने चाहिए, तो वो उसको अपने आप को एज इट इज़ जो है वो फील करते हैं, दे एक्ट आउट लाइक दैट, बिकॉज उनको लगता है वी हैव अ सोशल प्रेशर टू बिहेव द वे सोसाइटी परसीव्स अस टू बी. Yes. With that, what is the effect of being bullied? कि अगर आप एक बच्चा बुली हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा? इंतहाई बुरा इफेक्ट होगा. जो बुली हो रहा है, द विक्टिम ऑफ बुलिंग
is going to lose his self-esteem first of all. And when you lose your self-esteem, you just simply lose your self-worth. And when you don't consider yourself, you don't think of yourself as worthy, what are you going to produce or do? आप किसी भी इनिशिएटिव को अप्रोच करने के लिए, इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए जो आपके अंदर मोटिवेशन आती है ना, वो सबसे पहले आपकी सेल्फ वर्थ या सेल्फ इस्टीम से आती है. आप अपने आप को इतना वर्दी समझते हैं, इतना काबिल समझते हैं कि फिर आप मोटिवेटेड होते हैं टू अचीव द टारगेट और गोल. सबसे पहले जब आप सेल्फ इस्टीम लूज कर जाते हैं तो देन वो ग्रेजुअली फिर आपकी मोटिवेशन को, आपकी डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करता है. वो फिर आपकी साइकी को समहाउ आपके अंदर कुछ एंग्जाइटीज़ ले आता है मज़ीद. आपके अंदर इस हद तक भी हो सकता है कि आप बुली हो रहे हो मज़ीद मुसलसल, कि वो आप डिप्रेस्ड रहने लग जाएं. समहाउ यू आर नॉट अनेबल टू कम्युनिकेट. एक फैक्टर ये भी है इसमें नेगेटिव मेंटल हेल्थ का कि आप यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट दैट इफेक्टिवली. There are multiple reasons that you are not able to communicate effectively, and one of the most important is that the society or the people you go to are maybe not going to believe what you are going to say. तो फर्स्टली तो ये है ना कि इफ़ अ चाइल्ड इज़ रिपोर्टिंग यू समथिंग विच इज़ affecting his mental health and is related to bullying at school, college or whatever level, you have to believe in him, you have to have faith in him, you have to give him that confidence that if you are telling us कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, उसको एड्रेस करना, उसको लाइट नहीं लेना, उसको ये नहीं कहना कि चलें कुछ दिन बाद इसको आदत हो जाएगी या शायद बच्चा है ज़्यादा फियरफुल हो रहा है. यू हैव टू एड्रेस दैट. तो उसके फिर नेगेटिव आप देखें एलिमेंट्स क्या क्या आ जाते हैं कि आप फिर एक जब आप ग्रो करते हैं इनटू एन एडोलेसेंट और देन इनटू एन एडल्ट, तो उसमें आप उस कॉन्फिडेंस के साथ सोसाइटी में मूव नहीं कर पा रहे होते. आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जिसकी वजह से आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, आपके सोशल रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ बुलिंग तो मे बी आप आहिस्ता आहिस्ता सोशली आइसोलेशन की तरफ चले जाए ना. सोशल आइसोलेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मेक न्यू रिलेशनशिप्स ईजीली, वेदर इट बी फ्रेंड्स और इन अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं. फिर जब आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू लिसन यू, तो आप एक तरह से ट्रस्ट इश्यूज़ भी आप में आ जाते हैं. यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एवरी वन कि नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव मी, आई हैव टू मूव ऑन माई ओन. एंड देन ये तमाम चीज़ें जो हैं फिर आप देखें इसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है. ऐसे लोगों में डिप्रेशन बाजू का आ जाता है. डेफिनेटली एंग्जाइटी के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं. सिवियर लेवल पे जाएं तो पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है ये. बाजू का फिर आप अपने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं ऐसे जिनसे आप कोप अप करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली सोसाइटी में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके साथ फिर आप मैच नहीं कर पाते. तो ये ओवरऑल एक पर्सनैलिटी को ना हर तरीके से इमोशनली, फिज़िकली, हर तरीके से हार्म करता है. बुलिंग जो है या फिर नेगेटिवली आप कह सकते हैं एक हॉस्टिलिटी जो है डेफिनेटली विच इज़ बुलिंग, वेदर इट बी एट एजुकेशनल लेवल और वर्क प्लेस और एट होम, और it can be anywhere. It's not just about your peers or your friends. It happens at your workplace and your homes as well. Sometimes you get bullied by your spouse or your siblings or any authoritative personality at home. तो वो चीज़ जब घर में मुसलसल आपके पास अवेलेबल है, एक नेगेटिव फोर्स है, it's not going to let you move in society with that confidence which is needed to be a more successful person in your later age. According to you, how do we prevent bullying? Which measures should be taken? First and foremost is the spread of the word of which is about awareness of bullying. We have to spread the word कि bullying actually किस तरह से affect कर रही है, और इसको इतना casually नहीं लेना चाहिए. अपने schools में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में हमें एक observation अच्छी होनी चाहिए. Like if academic institute है कोई, तो definitely teachers should be very much vigilant about it, that bullying should not happen in class, and if it's going to be there, they should be very much vigilant to address that, to observe that and address that. और अपने स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करें कि अगर वो इस किस्म की किसी भी पहले तो उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में क्रिएट करनी चाहिए कि वो इस किस्म का कोई एक्ट ना करें. उनको ये एजुकेट करें कि ये चीज़ किस कदर बुरी है और ये अच्छी नहीं समझी जाती. इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ पावर और अथॉरिटी और सुपीरियरिटी. इट इज़ इटसेल्फ अ साइन ऑफ वीकनेस समहाउ.
तो दूसरी चीज़ ये कि फिर जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी कि उनकी बात सुनी जाए, स्पेशली बॉयज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है दैट दे डू नॉट एक्सप्रेस इट डायरेक्टली, दे हाइड देयर हर्टफुल फीलिंग्स, दे डोंट टेल यू दैट दे आर हर्ट। तो उनको थोड़ा साइड में ले जाके ऐसे बच्चे को, स्पेशली जो मेल चाइल्ड होता है या वैसे चाइल्डहुड की इससे बड़े भी हो जाएं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं इफ दे आर गेटिंग बुलेड और दे आर अ विक्टिम ऑफ bullying as well. Yes, you're absolutely right. And just with that topic, we'll continue this same discussion just right after a short break. Welcome back. As we were discussing the topic of bullying and harassment, moving on to harassment. Ma'am, as we talk about bullying, उसमें harassment भी काफ़ी दफ़ा हमने सुनी है. तो what do you think? What's the difference between bullying and harassment? यूजुअली एक कॉमन परसेप्शन ये है कि बुलिंग और हैरेसमेंट जो है ना वो एक ही कैटेगरी में आती है। हमारे यहाँ एक ऐसा समझा जाता है कि शायद हैरेसमेंट एक सिवियर फॉर्म ऑफ बुलिंग है, बट इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट। हैरेसमेंट और बुलिंग में बेसिक डिफरेंस ये है कि हैरेसमेंट में जो एक अनवांटेड बिहेवियर है ना वो रेलेवेंट होता है आपके प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स से। वो कौन से हैं? दैट आर योर एज, रेस, जेंडर, सेक्स, पॉलिटिकल और रिलीजियस ओरिएंटेशंस। ठीक है, इसमें इससे रेलेवेंट जब आपको हर्टफुल कमेंट्स वर्बली या अब्यूज़ का सामना करना पड़े इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल, इमोशनल, किसी भी किस्म की कैटेगरी जो है वो आपके इन प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स को टारगेट करने के लिए हो, तो दैट देन कम्स इनटू द टर्म ऑफ हैरेसमेंट। वेदर एज बुलिंग इज यूजुअली relevant to the individual characteristics aside these protected characteristics. So what are the basic types of harassment? See, there are multiple types. Bullying जिस तरह से है, bullying can be at cyber level, like cyberbullying, and then at workplace level, which is workplace bullying. उसमें आप देख लें अब क्योंकि we are progressing in terms of social media a lot, हमारे पास एक नहीं बहुत सारे social media के आप कह सकते हैं applications हैं जिनके ऊपर we are active. There are multiple. We are not just a part of one of those applications. We are everywhere. So उसमें एक चीज़ तो ये है कि वो public है, तो public level पे सबके होते हुए you are bullying someone for anything. तो वो एक फ्रंट पे आने वाली बात है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुलिंग एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट में आता है। फिर हैरेसमेंट की बात जब होती है तो उसमें भी आगे टाइप्स हैं, लाइक वर्बल हैरेसमेंट है, फिजिकल हैरेसमेंट है, इमोशनल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हर लेवल पे देखें आप, इसको आप सिर्फ वर्क प्लेस तक कन्फाइन नहीं कर सकते, डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको मिलती है इसके एविडेंस, वर्क प्लेस पे भी मिलते हैं, एकेडमिक्स में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज एंड वेरी सैडली कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं ये तमाम फैक्टर्स। और इसकी एक बड़ी रीज़न यही है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस जो करना चाहते हैं उसके साथ दे वांट कि उनको एक सुपीरियॉरिटी और अथॉरिटी जो है ना वो शो करनी है। Especially focusing on the workplace harassment and everything, what are your thoughts on victim blaming? Because आजकल victim blaming बहुत common हो चुकी है कि if a person goes through harassment, then it's their fault, they're asking for it. इसकी एक रीज़न ये है कि जो एक्चुअली हैरेसर होता है उसकी भी कोशिश ये होती है कि किसी तरह से अपने एक इमेज को वो बड़ा इंटैक्ट रखता है समहाउ पब्लिकली, इस तरह से कि उसके ऊपर आप जल्दी इजीली यू डोंट वोंट बिलीव कि फलां बंदा हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ हैरेसमेंट, ओह नो हाउ ही और शी कैन डू दैट। तो एक उसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि समहाउ it's easy not to believe him as a harasser या as a bully. The perception in your exactly. mind. उसके बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स वो यूज़ कर रहा होता है और फिर वो एक हम कहते हैं ना सीरियल हैरेसर की तो क्वालिटीज़ में कि वो फिर आपको हैरेस भी जो है इवन बहुत प्राइवेटली करेगा ताकि आप जब पब्लिकली उसको एक्सपोज करें तो वो
उस No पे one यकीन, believes you. नो वन इज गोइंग टू बिलीव यू डायरेक्टली, बल्कि जो बंदा शोर मचा रहा है उसी के ऊपर ज़्यादा ब्लेम आ जाता है, क्योंकि आजकल इसमें एक मीडिया का भी बड़ा रोल है कि हमें लगता है कि एवरीबडी वांट्स टू गेट फेम, तो मे बी दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग सच काइंड ऑफ एक्ट्स, और ऐसे विक्टिम्स जो हैं वो अपने आप को इसलिए एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं बिकॉज दे वांट फेम और दे वांट टू गेट नोन, दे वांट टू गेट टू बी नोन, और इस किस्म के बाद वो एक्सपोजर चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि वी लिव इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है? तो ऐसी सोसाइटी में इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव अ वीकर जेंडर, तो वो एक स्ट्रेंथ जो है वो उस सोसाइटी को जो डोमिनेटेड है वैसे ही मिल जाती है। यूजुअली जो है हरासर जो है वो कॉमन है कि वो मेल्स में ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की, फिजिकल हरासमेंट की बात करें। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल्स आर नॉट हरासर्स और दे आर नॉट बुलीज, दे आर, लेकिन वो वर्बल लेवल पे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रहती हैं, और जो मेल्स हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज दे वांट टू शो देयर डोमिनेंस। इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी आफ्टर ऑल। Point to be noted. So moving on, how does a person recover from harassment? देखिए, रिकवरी के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप उसको अप्रोच करें जो आपको लगता है इज़ गोइंग टू लिसन टू मी, और उस पर्सन के पास अथॉरिटी भी है, और उस पर्सन को भी हमें अपनी अथॉरिटीज़, अपनी ऐसी कमेटीज़ बनानी चाहिए जो कि यकीन करें उस बंदे पे, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और दे आर गोइंग टू बिलीव इन हिम। Whistle blowing is very important. If you are not going to say it, it means you have not faced it. When you don't ask a question, the answer is always no. So same is the case with it. If you're not going to report it, it means that nothing has happened to you ever. तो सबसे पहले तो इतना courage generate करना है कि वो जाके report करे, वो बताए, और जब वो बताए तो उसके लिए पूरी एक investigation हो, उस पर work हो, और उसके elements को find out किया जाए, और वही curb किया जाए organizational level पे, institutes के level पे, हर level पे ये काम होना चाहिए। Especially women kind of restrain from actually reporting it. हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है, इट्स अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, एंड इफ समवन यू नो टेल्स अबाउट इट, तो फिर वो एक बड़ी बात आ जाती है अबाउट द ऑनर, एंड वी आर गोइंग टू Yeah, ब्लेम द cases विक्टिम, and और फिर हम कहते हैं कि शी मस्ट बी समहाउ not a good lady, and there are a lot of questions on her character as well. तो इन तमाम चीज़ों को फेस करने से जो एक खौफ है ना, वो नहीं बोलने देता। लेकिन विसल ब्लोइंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना चाहिए सोसाइटी में ऐसे लोगों को जो कि बुलीज हैं, जो कि हैरेसर्स हैं, ताकि अब तक वो जो कर चुके हैं मज़ीद लोगों को उनके शर से जो है वो हम बचा सकें। Psychologically speaking, victim की mental health पे क्या effect होता है harassment से? विक्टिम की मेंटल हेल्थ पे हैरेसमेंट से भी वही इफेक्ट हो रहे हैं जो बुलिंग से हो रहे हैं, बल्कि उससे भी वर्स हो जाते हैं। स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है ऐसे लोगों में। आप अगर हैरेसमेंट का शिकार हैं, इवन वर्बल हैरेसमेंट, फिर इमोशनल हैरेसमेंट है, फिजिकल और वट एवर सेक्शुअल, तो वो एक लेवल पे डिसऑर्डर्स की शक्ल तक तो वो जाती है। लेकिन उससे पहले जो उससे कोप करने के लिए आपको बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से गुजरना पड़ता है। वो क्या क्या है, वो स्ट्रेस है, वो एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन है, और ये तमाम फैक्टर्स जो हैं दे कैन लीड टू सिवियर कंडीशंस एज वेल, लाइक PTSD, और समहाउ ये इससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस भी आप में आ सकती हैं, और इसके लिए देखें फिर ये बात है कि एक पूरी पर्सनैलिटी जो है वो समहाउ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब आप एक PTSD के पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी में कितना फ्रूटफुल होगा। एक शख्स जो एंग्जाइटी में 24 घंटे है, जो एक डिप्रेस्ड इंसान है, वो सोशल आइसोलेशन की तरफ ही जाएगा, समहाउ कट हो जाएगा सोसाइटी से, और कट ऑफ होने के बाद उसने क्या करना है, वो सोसाइटी से ही जब नहीं कोप अप कर पा रहा, वो किसी के साथ बैठ नहीं पा रहा, मिल नहीं पा रहा, ना उसकी एकेडमिक कोई उसमें है, आप कह सकते हैं प्रोग्रेस हो रही है, ना करियर लेवल पे हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें इसके नेगेटिव मेंटल हेल्थ की वजह से ही है ना। अपनी सेल्फ एस्टीम आप लूज़ करें, यू थिंक कि अगर इफ़ यू आर अ विक्टिम ऑफ harassment in any of its forms, you think you are the one who is no more effective or worthy of moving society with pride. So this is something जो एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड से एक थेरेपिस्ट को इंड्यूस करना चाहिए एक ऐसे शख्स में, एक ऐसे क्लाइंट में। अगर आपके पास हैरेसमेंट या बुलिंग का विक्टिम आ रहा है, तो उसको बताएं दैट यू आर वर्दी ऑफ डूइंग एवरीथिंग एंड यू डू नॉट डिजर्व टू बी डिसरिस्पेक्टेड।
सेकेंडली कि जिस किस्म की डिसहार्मनीज अगर हो जाती हैं तो उसके बाद एक रिपेयरमेंट होनी चाहिए, एक रिपेयरिंग जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो इंसान अपने आप को भी रिपेयर करे, अपने रिलेशनशिप्स को भी रिपेयर करे। तो ये एजुकेशन जो है और अवेयरनेस जो है ये पहला स्टेप है। इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो है स्पेसिफिक विक्टिम जो है इसको डील कर सकते हैं। Even society shows disgust towards the people who are harassed. कि कोई harassment से गुजरता है and he or she comes out about it, they show disgust towards it. एग्जैक्टली हमारे यहाँ एक ट्रोलिंग का भी तो बन गया है ना, जो बंदा थोड़ा सा एक्सपोज होता है, थोड़ा शोर मचाता है, तो सबसे पहले तो हम उसको ट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें साइबर बुलिंग में कितना हमने ये तो बिल्कुल एक ट्रेंड बन गया है कि कोई ज़रा सी भी कोई बात करे तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस ट्रोलिंग की वजह से, उस साइबर बुलिंग की वजह से वो एक तरह की इमोशनल हैरेसमेंट है उस इंसान के लिए जो अपने बारे में इतनी सारी नेगेटिविटी रिसीव कर रहा है। तो उसकी मेंटल हेल्थ फिर कहाँ स्टेबल रह सकती है। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे केसेस और एविडेंसेस आए रोज हम देखते भी हैं। Okay, ma'am, thank you for joining us. It was a very fruitful session. And hopefully, you guys found it just as informative as me. Bullying is not something that just remains in your school life. Bullying and harassment are actually such issues जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी एज पे, किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं. Workplace harassment, just as ma'am described. So being aware of such issues helps us a lot these days. And we'll be back inshallah with another informative episode. Stay tuned. Thank you for watching. Allah Hafiz.